Class 10 English Lesson 2 on Violence. The first part of this video we saw about violence, that is physical violence and inward violence, and how can you be a beautiful person, beautiful human being without violence. So whether you are going to contribute the violence, the society or not. These all things we saw in first part. In this part, we continue page 21, last paragraph. But a new world is necessary. But a new world is necessary. Why the old world? The world where you live, full of violence, पूरा violence के साथ एक वो दुनिया है. But we need not that world. We need a new world. हमें एक नए वर्ल्ड चाहिए. It is necessary. अनिवार्य है. A new culture is necessary. एक नए कल्चर है हमें अनिवार्य है. It is very necessary. The old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized. When you think about old culture, हमारी पुरानी संस्कृति, नहीं तो अभी जो आपकी चरम तरफ हमें दिखता है नोट संस्कृत संस्कार हमारे संस्कार हैं, that is old, dead and buried. ये मर गया है, ये गड़ा गया है. बैंड डेड बॉडी को है तो बैंड करेंगे, क्रेमेट करेंगे, जलाएंगे और बरी करेंगे, गाड़ देते हैं. और दिस में एक्सप्लोडेड डेड बॉडी either burn और bury, ये दोनों नहीं करेगा तो ये फूल जाएगा, उसके बाद ये फट जाएगा. एंड वेपराइज, इवापोरेट करके जाएंगे. यानी हमारे बॉडी बना हुआ है पंच तत्व का है, यानी वापस उसी में ही बॉडी चले जाए. मिट्टी, आकाश, अग्नि, जल, यानी इसी तरह पंच तत्व है, उसमें वापस बॉडी चला जाएगा. यानी ये डेड बॉडी है, ये तो गाड़ा जाएगा, नहीं तो बर्न किया जाएगा, नहीं तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, कैसे भी करके ये पंचतत्व में विलीन हो जाएगा. You have to create a new culture. So the culture, the old culture is dead. Dead culture we need not. हमें तो नहीं चाहिए. So we need a new culture. A new culture cannot be based on violence. Why don't we need old culture? हमारे old culture हैं, ये पुराना संस्कार है, हमें क्यों नहीं चाहिए? Because the old culture, or the present culture that we follow is based on violence. Violence पर आधारित है. We need a new culture that is not based on violence. ये violence पर आधारित नहीं हो. The new culture depend on you because the old generation has built a society based on violence. You see, now you are the new generation. आप नई पीढ़ी है. So we need a new generation for new culture for new generation. ये नए जनरेशन के लिए नए कल्चर हमें चाहिए. तो ओल्ड कल्चर दैट वाज ऑफ ओल्ड जनरेशन, पुराना कल्चर है, पुराना लोगों का था, दैट वाज बेस्ड ऑन वायलेंस, वो वायलेंस पर निर्भर थे. नाउ द प्रेजेंट, द न्यू कल्चर दैट डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर है, नॉट ऑन वायलेंस. वायलेंस के ऊपर निर्भर नहीं, आपके ऊपर निर्भर है. मीन्स जो नए जो कल्चर हैं, संस्कार हैं, हम डेवलप करेंगे नॉट बेस्ड ऑन वायलेंस बट बेस्ड ऑन यू. तो वायलेंस पर बेस्ड नहीं, आपके ऊपर बेस्ड होगा.
And all the culture that based on violence and based on aggressiveness, aggressive, you know the word meaning aggressive, attack, यानी एकदम हमला करने के लिए तैयारी में रहते हैं, यानी वायलेंट। जो ओल्ड कल्चर है, ओल्ड जनरेशन का कल्चर है, दैट वाज डिपेंड ऑन वायलेंस एंड अग्रेसिवनेस, एंड it is this that has caused all confusion, all the misery। यानी आज जितने कंफ्यूजन है, असमंजस है, मिजरी है, मुसीबत है, ये सब का कारण क्या है? ओल्ड कल्चर, ओल्ड जनरेशन का जो कल्चर है, that was based on violence and aggressiveness। इसी वायलेंस और अग्रेसिवनेस के कारण से जितना कंफ्यूजन है और जितना मिसरी है, मुसीबत है, सब का कारण वही है। The older generation have produced this world and you have to change it। Okay, now there is a world in front of you that all the generations have produced it। पुराना जनरेशन ने तैयार किया एक दुनिया है हमारे सामने। So you need not create a new world, but you have to change that world। उसी वर्ल्ड को चेंज करना है, that is your duty। You cannot you cannot just sit back and say, I will follow the rest of the people and seek success and position। You cannot just sit back and say, आप आराम से बैठकर ऐसे कर नहीं सकते हैं, I will follow the rest of the people, बाकी लोगों के समान मैं भी चलूंगा, and seek success and position। मेरा लाइफ में मैं विजय और अच्छे पोजीशन यानी आदर सम्मान पाऊंगा। यू कैन से इट, आप बोल नहीं सकते। इफ यू डू सो, अगर आप ऐसे करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। आप ऐसे करेंगे, उसका जो आफ्टरमाथ है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आपका नहीं, आपका आने वाला पीढ़ी, कमिंग जनरेशन, your coming generation who is going to suffer। जिसका अभी आप जो करते हैं काम का जो उसका असर है, कॉन्सिक्वेंस है, आफ्टरमाथ है, नतीजा है, आपका आने वाले पीढ़ी के ऊपर होगा। आप जानते हैं, अगर आप आज एक पेड़ लगाएंगे, उसका फल आपकी पीढ़ी, योर जनरेशन, वो इस्तेमाल करेंगे। आज आप किस आम से, पेड़ से आम तोड़ते हैं, वो पेड़ आपने नहीं लगाया, आपका पूर्वजों ने लगाया, उसका फल आपको मिल रहा है आज। तो इसी तरह है, when you sit back, आराम से बैठ के, you follow rest of the people, बाकी लोगों के समान रहेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सिक्वेंसेस होगा। वो नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं, बट इट कम्स ऑन योर जनरेशन। एंड यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है आपके एक अच्छे समय है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। ये अच्छे समय का आपका अच्छा समय है, पर उसका मुसीबत किसको होगा? योर चिल्ड्रन। You are in Rajasthan, you talk with your grandparents or older people about water level, groundwater level of Rajasthan or the area where you live। जहाँ आप रहते हैं उसी एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में बात करो, पता चलेगा। बहुत अच्छे पानी हुआ करते थे, बहुत कम गहराई में अच्छे पानी मिलते थे। आज काफ़ी नीचे तक चला गया है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, पानी भी खारा आ जाता है। Our forefathers did not conserve water, did not use water wisely, they wasted a lot, बहुत वेस्ट किया है।
इसलिए उसका असर किसको होगा? वो तो चला गया। अभी उनका जो पीढ़ी के आगे आए हैं, उनके बच्चे हैं, यानी आप लोग, पाने के लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो ये कंडीशन है। व्हेन यू फॉलो rest of the people, then you are not saving something good for your generation. You are saving some troubles for them. उनके लिए कुछ troubles को आप सेव कर रहे हैं. You may have good time. So you have to take all that into account. इसलिए ये सारी बात आपको कंसिडर करना है. Take into account, यानी कंसिडर करना है. The outward cruelty of man to man in the name of God, the name of religion, in the name of self-importance, the name of the security of the family. So you have to take all that into account. यानी पूर्वजों ने जो काम किया है, ये सारे चीज़ों को आज आपको कंसिडर करना है. उन्होंने क्या किया है, उसका क्या असर हमारे ऊपर है. सो गुड इफेक्ट क्या है और बैड इफेक्ट क्या है. तो अगर बैड इफेक्ट कुछ है तो हमारे आने वाला पीढ़ी के ऊपर ये बैड इफेक्ट नहीं जाना चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे, ये सारी चीज़ को कंसिडर करके द आउटवर्ड क्रुअल्टी ऑफ द मैन टू मैन, इंसान के ऊपर इंसान का जो क्रुअल्टी है, किसके, इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड का नाम से, इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन्स के नाम से, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपना स्वार्थ के लिए, अपना खुद का काम के लिए दूसरों को हम परेशान किए हैं. ऐसे हम परेशान करते थे, ऐसे कुछ कल्चर डेवलप किए थे. नो, ये तो नहीं होना चाहिए. वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली. और फैमिली का सिक्योरिटी का बहाने से भी हम क्या करते थे, वी यूज्ड वायलेंस. हमने वायलेंस इस्तेमाल किया है. You will have to consider the outward cruelty and violence and inward violence which you do not yet know. You will have to consider outward cruelty or violence. Violence का outward cruelty आपको consider करना है, and inward violence which you do not know yet. अभी inward violence है, वो क्या है अब तक आप जाना नहीं. Outward violence that आप चारों तरफ देख सकते हैं, तो उसमें से हमें दूर आना है. और दूसरा आ रहे हैं इनवर्ड वायलेंस, अंदरूनी वायलेंस है, वो अब तक आप जाना नहीं. यू आर स्टिल यंग, but as you grow older you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. देखो, अभी आप बच्चे हैं, इनवर्ड वायलेंस के बारे में आपको इतना आइडिया तो नहीं है. बट आज यू ग्रो, जैसे ये बढ़े जाएंगे, यू विल रियलाइज, आप इस चीज़ को एहसास करेंगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल. नॉट ओनली यू, मात्र आप नहीं, द पीपल अराउंड यू, सराउंडिंग यू, आपको चारों तरफ जितना लोग हैं, ये सब आपके अंदर ही अंदर एक वायलेंस कीप करते हैं. यानी दे दिस मैन गोज थ्रू हेल. मैन आदमी यानी इंसान मुसीबत में है, नरक में है. गोज थ्रू ग्रेट मिसरी, बहुत मुसीबत से होकर निकलते हैं, बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिज इंस्टाल, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूस, लगातार बैटल है, युद्ध है. आदमी अपने आप में लगातार युद्ध लड़ रहे हैं विद हिमसेल्फ. वो युद्ध अपने आप में बहुत पहले फर्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल बता दिया था. आपको क्लास स्कूल जाना है, नहीं जाना है, एक बैटल है. इसी तरह ये आपके लिए, तो आप बड़े होने पर आपके सामने और बड़ी जिम्मेदारी होगी. उसी जिम्मेदारी करने के लिए कई बार आपको ऐसे का मन में you are not able to decide, आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं. सो देयर कम्स एक बैटल होता है.
ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे एक बैटल अपने आप में होता है। फिर बाद में विद हिज वाइफ, फैमिली लाइफ में वाइफ के साथ, उसके बाद विद हिज चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। आप देखो आपका पापा मम्मी कितने बार एक दिन आपको डांटते हैं, क्यों? इट्स ए बैटल, ये बैटल है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। यानी ये तो आपके साथ भी होगा, कल आप आपके बच्चे के साथ ऐसे ही बैटल करेंगे। एंड विद हिज नेबर्स, ये तो हो गया अपने आप में लड़ाई, वाइफ के साथ लड़ाई, बच्चों के साथ बैटल, उधर भी खत्म हुआ नहीं, इट स्प्रेडिंग आउट, बागर फैल रहा है। इट गोज टू नेबर्स, फिर बाद में नेबर्स के साथ छोटे मोटे बातों पर बैटल, ये सब के ऊपर विद हिज गॉड्स। लास्ट में ये लड़ाई तो खत्म हुआ नहीं, इट गोज टू गॉड्स, गॉड्स तक पहुंचता है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्शन ऑफ गॉड। गॉड का जो काम है हमसे हम सेटिस्फाइड नहीं है। वी क्वेश्चन हिम, आप उसको सवाल करते हैं। देयर इज अ बैटल बिटवीन गॉड एंड यू। He is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosity, and no charity. He is in sorrow. He means a human being. Man is in sorrow and confusion. वो दुख में है and confusion, असमंजस में है। And there is no love, कोई प्यार नहीं। No kindliness, कोई दयाभाव नहीं। No generosity, उदारता नहीं। और no charity, कोई उदारता नहीं। And a person may have a PhD after his name, or he may become a businessman with a house and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive. And you consider a man, or consider yourself, अपने आप को कंसिडर करो। आप लर्न कर रहे, पढ़ रहे हैं, आप डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद और पढ़ाई करके पीएचडी ले लेते हैं। बस में हाँ पीएचडी आफ्टर हिज नेम, पीएचडी ले लिया नाम के साथ लेकर रखेंगे पीएचडी। एंड ही मे बिकम बिजनेसमैन, नहीं तो एक सफल बिजनेसमैन बन गया है विद हाउसेस, उसके पास बहुत सारे बंगला हैं, एंड कार्स, गाड़ियां हैं। बट इफ ही हैज नो लव, नो अफेक्शन, फिर भी उसके पास संपत्ति है, कार्स हैं, घर हैं, गुड बिजनेस और गुड क्वालिफिकेशन, इवन दो he possesses all these things, ये सब प्रोसेस करने के बावजूद भी, बट इफ ही हैज नो लव, अगर उसका लव नहीं, नो affection, affection is love, dayabhav, and kindliness, no consideration. If he is not considering others, he is really worse than an animal. अब देखो, अच्छे क्वालिफिकेशन है, अच्छे बिजनेस है, having good money, wealthy man, healthy man, having all these things, ये सब होते हैं, still he has no love, no affection, no kindliness, then he is not better than an animal. एक जानवर से बेहतर नहीं है, because he contributes to the world that is destructive. If he has no love, kindliness, affection, it means you are contributing to the world, the society of violence, violence के society है, वो destructive है,
ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिव है, उसी डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड का आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आप योगदान दे रहे हैं. So you see, it's very important having good personality. You may learn and earn. हो सकते हैं आप पढ़ेंगे, अर्निंग भी करेंगे. But if you don't learn to live like a human being, a different life than that of all the generation, then all these are of no avail, useless है. आप फिर ह्यूमन नहीं रहेगा.